You only have 499 days left. If you will study consistently 8 hours daily, then you only have left 3992 hours. In this journey, you need these three things. If one of these are absent, you won't be able to clear this examination. सबसे ज्यादा टाइम आपको मिल रहा है फेज 2 में, जुलाई से दिसंबर, जो कि मेंस रेडी का। सच्चे एस्पिरेंट तभी कहलाओगे जब तुमको पूरा याद होगा, हर एक कीवर्ड पे तुम्हारा नोट्स रेडी होगा। रिसेंटली 2025 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, यानी कि हम सिलेबस को उठाएंगे, उसको डिटेल में पढ़ेंगे, एनालिसिस करेंगे, फिर उसको पीवाईक्यू से मैप करेंगे। अगर आप इनको देखोगे तो आपको क्लैरिटी होगी कितना लिमिटेड मेरे को पढ़ना है। हिस्ट्री पूरी इतनी बड़ी आप पढ़ेंगे तो 75 मार्क्स का आएगा, लेकिन अगर आप एथिक्स अच्छे से पढ़ लेंगे तो वो 250 मार्क्स का है। आप एज ले लेंगे इस पूरे एग्जामिनेशन में। जो इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट है, उसको सबसे पहले कीजिए। डोंट वेस्ट योर टाइम इन रैंडम थिंग्स। Okay, study only what matters. Because you want to clear UPSC CSE 2027, that is why you have clicked this video and now you are watching. I have two questions for you. Number one, do you really know that how many days are left for you to prepare for UPSC 2027 prelims? Yes, of course, it's only 499 days are left, जो कि यहाँ लिखा हुआ है. Now my second question is, do you really know what is UPSC, how they conduct examination, and What UPSC ask? Let me tell you, 80% एस्पिरेंट्स को नहीं पता है कि यूपीएससी को क्या चाहिए, लेकिन हम वो सारी चीजें पढ़ते हैं जो कि एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होती है। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू दैट व्हाट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट यूपीएससी वांट्स एंड फ्यू इंग्रेडिएंट्स जिसके थ्रू आप यूपीएससी को क्रैक कर सकते हो इन द नेक्स्ट 499 days। और ये वक्त धीरे धीरे कम होता जा रहा है, which means you only have 1 year, 5 months and 22 days are left. Now without wasting time, let us move forward. I'm sure आप इन दोनों को जानते होंगे, लॉर्ड हनुमान एंड हल्क। ओके, मैं इनको इसलिए यहां पर लेकर आया हूं बिकॉज दे बोथ आर वेरी एनर्जेटिक, वेरी पावरफुल, जाइगेंटिक, बहुत एनॉर्मस पावर है, शक्ति है। बट एट पॉइंट ऑफ टाइम, अगर आपको पता होगा हनुमान जी के बारे में या फिर आपको हल्क के बारे में, तो देयर वाज अ पॉइंट ऑफ टाइम इन दोनों की जिंदगी में जब ये डायरेक्शनलेस थे, इनको नहीं पता था इनको क्या करना है। इनको अपना लक्ष्य तब पता चला जब ये भगवान श्री राम से मिले, तब इनको अपनी असली शक्तियों का पता चला, तब इनको अपनी असली पावर का पता चला। एंड हल्क, जब इसको बताया गया कि तुम्हारी असली शक्ति जो है वो डिस्ट्रॉय करने में नहीं है बल्कि प्रोटेक्ट करने में है, तब इसको अपनी शक्ति का पता चला। Which means everybody needs one mentor, everybody needs one guide, and everybody needs the teacher who actually वो रोल प्ले करें so that आपके अंदर से आपका हनुमान और आपके अंदर से आपका हल्क निकल कर आ जाए। And that is the good teacher. So hello and welcome to Margdarshan IAS. I am Siddharth. I am the founder of Margdarshan IAS and I have been mentoring UPSC, CSE and state civil services aspirants from last 6 to 7 years. And there are a couple of candidates who have qualified this examination and most probably prelims और mains तो maximum qualify करते ही करते हैं। Without wasting time, let me tell you another thing. Now, as I said, you only have 499 days left, which means what? If you will study consistently 8 hours daily, then you only have left 3992 hours. आपके पास इतने घंटे बचे हुए हैं। If you are a full-time aspirant, okay? Daily if you are studying, but I know and you also know कि daily तो तुमसे हो नहीं पाएगा। So minus कर दो। You have very limited hours, ठीक है? और limited hours है तो limited पढ़ना है, multiple revision करना है। For those who are working in with job or in college, you have only 4 to 5 hours. Only 4 to 5 hours daily, which you multiply with 499, it will come 2495. आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2495 hours हैं, a limited hour. But still, it's very much doable if you will start now. Please take this seriously. Let me tell you another thing which is extremely important. In this journey, you need these three things. If one of these are absent, you won't be able to clear this examination. Number one is discipline. It will give you proper structure. It will give you proper outline. Daily schedule, fix, किस टाइम उठना है, किस टाइम सुसु, पॉटी, कब जाना है, कब उठना है. There should be discipline. Cleanliness, table clean रखना है, discipline.
फोकस शार्प्स योर एम। अर्जुन की तरह एकदम मछली की तरह निशाना रखना है ना। एटलीस्ट आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो फोकस रखो, फिर ग्रुप सी, ग्रुप डी और कोई एग्जाम मत देखो। हाँ, सिविल सर्विसेज का एग्जाम आप देख सकते हो, बट शुड बी फोकस्ड, रेजर शार्प, एंड देन कंसिस्टेंसी। Consistency will fuel the journey with success. Daily efforts. Okay? Read this. The future belongs to those who are consistent, not to the talented one, not to the lucky one, but who works daily effortlessly. ठीक है? Effort never betrays you. समझ में आ रहा? Now, the first 12 months, which means from January till December, is extremely important. Okay? अगर हमारा पहला 6 महीने अच्छा जाएगा, आप ये लगा लीजिए यूपीएससी इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ योर एफर्ट। इफ यू विल पुट योर बेस्ट इन द नेक्स्ट फर्स्ट 6 months, इट विल रेप्लीकेट इन योर नेक्स्ट 6 months। समझ रहे हो? पहले 6 महीने अगर बढ़िया करोगे तो आप मस्त, आगे का 6 महीना बहुत अच्छा होगा। सो हियर व्हाट आई हैव मेंशन्ड, दैट फेज हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 phases, which means foundation phase, and then intensive study phase, and then revision and mock exam phase. Which means what? Foundation phase is from Jan to June. Jan to June is the foundation phase. Revision, intensive study phase is from July to December, and then December के बाद हम प्री मोड में आ जाएंगे। फिर यहाँ आएगा हमारा प्री ओरिएंटेड एंड मॉक फेज। ओके, नाउ द एंटायर फेज has been divided again into 4 phases. What kind of phase? Number 1, जैन से जून, ठीक है, जुलाई से दिसंबर, फिर जैन से मई। ये पहले 3 फेज जो हमने अभी डिस्कस किए थे, ये वाले, और ये जो है जून से अगस्त, ये मेंस का है। ओके, तो आपका एग्जाम 23 मई 2027 को हो सकता है। ओके, उसके हिसाब से हमारे पास सिर्फ 499 डेज बचे हुए हैं। हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले फेज को हम लोग जैन से जून तक लेकर चलेंगे, जो कि हमारा फाउंडेशन है। उसमें आपको सिर्फ 181 डेज मिल रहे हैं, और अगर आप 8 आवर्स पर डे पढ़ रहे हो तो आपके पास 1500 ऑलमोस्ट आवर्स हैं, तो आप मैक्सिमम एफर्ट लगा सकते हो, विच इज रियली मतलब सस्टेनेबल टाइम है। सबसे ज्यादा टाइम आपको मिल रहा है फेज 2 में, जुलाई से दिसंबर, जो कि मेंस रेडी का। इसमें आपको मेंस रेडी होना है, मेंस ओरिएंटेड। आई विल टेल यू each and every step. 184 days, 1472 hours. Prelims ready we will come from January 2027 to May 2027, which only have 144 days left. Which means कि अगर तुम ये ठीक कर लेती हो, यानी कि अपना 181 डेज ठीक कर लेती हो, तो ये मल्टीप्लाई होगा। समझ रहे हो? उसके बाद फिर मेंस में ठीक कर लेती हो तो ये और मल्टीप्लाई होगा। अगर तुम ये डेट 181 डेज को अगर तुम खराब कर देती हो तो फिर मतलब आपकी प्रिपरेशन बहुत पीछे रह जाएगी। एंड आई एम टेलिंग देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो कि आपसे पहले से तैयारी कर रहे हैं 2027 की। मेरे पास एक क्लास 11th का ही बच्चा है, ठीक है, आप सोचिए कितनी पहले से तैयारी कर रहा है। आई हैव अ लॉट ऑफ पीपल, दे वांटेड टू गिव 2026 बट दे आर फोकसिंग ऑन 2027, और वो अभी से तैयारी कर रहे हैं। सो ये नहीं सोचना है कि आप जून से कर लेंगी, या आप अभी से करिए। राइट नाउ इज द राइट टाइम। डोंट वेट फॉर एनीथिंग एल्स, जस्ट स्टार्ट इट। ओके, ये फेज समझ में आ गया। ओके, अब हम लोग आते हैं डिटेल में। मैं आपको इस वीडियो में पूरी प्लानर बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको टाइम टेबल कैसे हमारा कंप्लीट करेंगे इसको, फिर रियलिटी बताऊंगा, अप्रोच बताऊंगा, और फिर रिसोर्सेज बताऊंगा वो क्या होंगे रिसोर्सेज। ऑलराइट, सो कंसिडर कि ये आपने ऑलरेडी हमारे बैच में एनरोल कर लिया है। फर्ज कीजिए कि आपने हमारे बैच में एनरोल कर लिया है और ये आपकी पहली ओरिएंटेशन क्लास है, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे जनरली लोग पूरी वीडियो देखते नहीं हैं। जब जो बच्चा पूरी वीडियो देखता है उसको क्लियर मैसेज चला जाता है कि करना क्या है, फिर वो दोबारा कोई जनरली इतनी लंबी वीडियो देखता नहीं है। ये वो वीडियो है, और आप अपने आप को थैंक यू बोलोगे कि इस वीडियो को मैंने क्लिक किया और ओपन किया क्योंकि मुझे आई ओपनिंग चीजें पता चली हैं। ओके, सो आवर फॉर्मल बैच स्टार्टिंग फ्रॉम 12 जनवरी 2026, 12 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है, और कोशिश करिए ये आपका एक ओरिएंटेशन सेशन है। डिटेल में ध्यान से देखिए आप इसको, ठीक है। वाई वी आर डिफरेंट, हम लोग अलग क्यों हैं? क्योंकि हम लोग मेंटोरशिप के एंगल से इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को लेकर जाएंगे। प्री में कैसे करना है, मेंस में कैसे करना है, हर एक सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करेंगे,
क्या नहीं पढ़ना है, कितना लिमिटेड पढ़ना है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. दिस इज MAGP, the program name is MAGP, Margdarshan Assessment and Guidance Program 2027. This is the discount code which you will use UPSC 2027 to get the maximum discount. Why we are different? ये सारी चीजें हैं. ये सारी चीजें क्या हैं? पर्सनलाइज मेंटोरशिप है, आंसर राइटिंग है, मेंस ओरिएंटेड लेक्चर्स हैं, प्रीलिम्स ओरिएंटेड लेक्चर्स हैं, एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर्स हैं, सिलेबस की एनालिसिस होगी, PYQ की एनालिसिस होगी. पिछले 16-17 सालों में यूपीएससी ने जैसे क्वेश्चंस पूछा है उसी क्वेश्चंस के फॉर्मेट पे हमने टेस्ट सीरीज बनाई हुई है, एंड देन सब्जेक्ट वाइज गाइडेंस एंड बुक लिस्ट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. लेकिन ये सबके बावजूद भी अगर आपने इसको डेडिकेशन के साथ नहीं फॉलो किया तो ये तो क्या, दुनिया का कोई भी कोर्स आपको मदद नहीं कर सकता. समझे? सो दिस इज वेरी बेसिक, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यू शुड डेफिनेटली गो हेड एंड एनरोल इट. ओके, यहां पर इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है. चाहे आप MAGP यानी कि प्री मेंस लें या फिर MGP लें जो कि हमारे सिर्फ मेंस ओरिएंटेड है, ये आपके ऊपर है. चारों प्रोग्राम के लिए कोड यूज होगा UPSC 2027. ओके, नाउ ये टाइम टेबल मैंने आपको दिखाया था. इस टाइम टेबल के हिसाब से अब मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूं. देखो, इस पूरे के पूरे प्रोसेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इज UPSC CSE सिलेबस. अब आप सोचोगे कि अरे सर क्या आप भी बात कर रहे हैं, सिलेबस तो ठीक है. द मोमेंट यू से लाइक दिस, द मोमेंट यू थिंक अरे सिलेबस ठीक है, आप वहीं से हार रहे हो. आपकी उल्टी गिनती वहीं से शुरू. इफ यू आर नॉट सीरियस अबाउट UPSC सिलेबस देन यू आर आउट ऑफ द गेम. यू आर आउट ऑफ द गेम. जब तक तुमको UPSC का सिलेबस याद नहीं होता तब तक यू आर नॉट इन द गेम. मैंने ऑलरेडी सिलेबस की एनालिसिस की हुई है. ठीक है, सिलेबस की एनालिसिस ऑलरेडी वीडियो में की हुई है. मैं आपको वीडियो लिंक अटैच कर दूंगा, आप देख लीजिएगा. लेकिन मैं आपको एक सैंपल बताता हूं, मैं आपको बताता हूं एग्जांपल से. ठीक है, एग्जांपल देख के आपको बताता हूं कि हाउ इंपॉर्टेंट इज UPSC सिलेबस एंड व्हाई इट इज नॉन नेगोशिएबल. मतलब एकदम बर्दाश्त ही नहीं करना, हमें इसको छोड़ना ही नहीं किसी भी हालत में. ओके, ये सिलेबस है, ये आपको सिलेबस मिल जाएगा. ठीक है, आप UPSC CSE 2025 सिलेबस डालिए गूगल पे, आपको नोटिफिकेशन के थ्रू ये प्रिंट आउट मिल जाएगा. ठीक है, मुझे ये बताओ, अगर जानते हो UPSC के बारे में, तो अगर UPSC के बारे में जानते हो तो तुम्हें पता है कि पॉलिटी या पेपर 2 में कितने पेपर होते हैं, या फिर सिलेबस में हमारे GS 1, 2, 3 में का पूरा सिलेबस क्या है, ये तुम्हें याद है. सच्चे एस्पिरेंट तभी कहलाओगे जब तुमको पूरा याद होगा. हर एक कीवर्ड पे तुम्हारा नोट्स रेडी होगा. अब आपको मैं एग्जांपल बता रहा हूं कैसे नोट्स रेडी होगा, ध्यान से देखिएगा. सो ये हमारा सिलेबस है, आपको मिल जाएगा ऑलरेडी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो. ये है पेपर 1 जहां पर इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी. ये इतना बड़ा है. ठीक है, क्या आपको याद है ये? आई एम श्योर आपको नहीं होगा, भी याद करना पड़ेगा बेटा. ठीक है, जनरल स्टडीज 2, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन. आपको एग्जांपल बता रहा हूं मैं. यहां पर क्या लिखा हुआ है? यहां पर लिखा हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. उसके अंदर क्या क्या पूछा जाएगा UPSC के सिलेबस में? हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर. ओके, ये सब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से ये आपसे पूछा जाएगा. लेकिन अब आप कहेंगे कि क्या पूछा जाएगा, होता क्या है फीचर्स, कैसे क्वेश्चंस आते हैं? तो सिलेबस इज योर फर्स्ट बेस्ट फ्रेंड. सिलेबस इज योर फर्स्ट बेस्ट फ्रेंड. शुड नॉट इग्नोर, इग्नोर ही नहीं करना है. क्यों? क्योंकि हम सिलेबस बेस्ड, कीवर्ड बेस्ड नोट्स बनाते हैं. एक एक कीवर्ड पे नोट्स बनती है. हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग पे नोट्स बनेगी. ओके, इवोल्यूशन पे नोट्स बनेगी, फीचर्स पे नोट्स बनेगी. कैसी नोट्स बनेगी, कहां से नोट्स बनेगी? ये तो पहली लाइन मैंने बताया आपको. बाकी की सारी लाइनें हर एक कीवर्ड पे नोट बनेगा, हर एक कीवर्ड पे. लेकिन कैसे बनेगा सर? ध्यान से देखिएगा. ये मैंने दिखा दिया आपको. अब हम लोग चलते हैं मेंस के क्वेश्चन की तरफ. ये हमारा PYQ है. मेंस के पिछले 13 साल के PYQ की एनालिसिस है. PYQ फर्स्ट, बुक्स लेटर. UPSC CSE मेंस PYQ इस तरह, GS पेपर 2, ये लेवल 1 थीम है.
ओके, यहाँ लिखा हुआ है 2013 से 2025 एकदम लेटेस्ट है। ओके, हम लोग चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे तो सेम चीज लिखा हुआ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, इवोल्यूशन, फीचर, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजन, राइट। तो अमेंडमेंट, केस लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट, ये सारे से क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं मेंस में। एग्जांपल के तौर पे क्लिक करते हैं अमेंडमेंट पे, ठीक। ये अमेंडमेंट पे हमने क्लिक किया, यहां से हमें ये पता चलता है कि रिसेंटली, ये देखिए, ये हमने अमेंडमेंट पे क्लिक कर दिया, रिसेंटली 2025 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है कि क्या संसद किसी भी कानून को इतनी जल्दी से अमेंड कर सकती है क्या, लिमिटिंग ऑन अमेंडिंग पावर, अमेंडमेंट का प्रोसेस क्या होता है, ये आपसे मेंस में पूछा गया है, ठीक है। एग्जामिन प्रोसीजर और सब्सटैंशिव लिमिटेशन ऑफ द अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट, आपको प्रोसीजर भी बताना है कि कैसे अमेंड होता है, आपको लिमिटेशन भी बताना है कि क्या क्या चीजें अमेंड हो सकती हैं, क्या क्या नहीं हो सकती हैं। समझ में आ रहा है? ये आपका मेंस का क्वेश्चन है, ये 2025 में पूछा गया, ठीक है। फिर उसके बाद 2019 में भी सेम क्वेश्चन आया था और 2016 में भी सेम अमेंडमेंट से रिलेटेड। जैसे 2016 में 69th अमेंडमेंट दिल्ली गवर्नेंस के पूछा गया था, 2017 में जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था मेंस में। और हम आते हैं केस लॉज हैं, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी होती क्या है। आप बताइए कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और एप्लीकेशन क्या है, कि हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं बिटवीन जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, ये आपका वहां से आया है। फिर 2023 में आया था कि आप बताइए कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव क्या है ऑफ जेंडर जस्टिस विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन केस लॉ, यानी कि आपको जजमेंट के थ्रू बताना है कि जेंडर जस्टिस होती क्या है, ठीक है, केस के थ्रू, है ना, आपको जजमेंट्स के थ्रू आपको बताना है। इस तरीके के क्वेश्चन, यानी कि आप समझ रहे हैं कि कैसे यूपीएससी क्या क्या आपसे पूछना चाहती है। तो ये हो गया आपका फ्रेंड नंबर 2, ओके। यानी कि हम सिलेबस को उठाएंगे, उसको डिटेल में पढ़ेंगे, एनालिसिस करेंगे, फिर उसको पीवाईक्यू से मैप करेंगे, ओके। फिर देखेंगे कि एग्जाम चाहता क्या है, किस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन पूछते हैं। ये तो हमारे प्री मेंस का हो गया। लेट अस सी प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, ओके। बाय द वे, ये आप ऑलरेडी जाके परचेज कर सकते हो और आपके प्रोग्राम में ये पूरी इंक्लूड है। जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 ऐसे का सबका 13 साल का और 4 लेवल में है, बहुत डिटेल है, ठीक है। इन सब का मॉडल आंसर भी है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि जैसे मान लीजिए इसमें प्रीलिम्स में, ठीक है, तो प्रीलिम्स में हमारी ये माइक्रो थीम है 2010 से लेकर 2025 तक, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं प्री में। अब हम लोग यहां पर आते हैं, ये आ गया प्री पीवाईक्यू अस्त्रा लेवल 1। लेवल 1 में हमने देखा कि यहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, हमने इस पे क्लिक किया, यहां आ गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे। अभी 2024 में क्वेश्चन आया है आर्टिकल 368 के ऊपर, ठीक है, कि पार्लियामेंट में अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय वे ऑफ क्या, पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से, तरीका पूछा है, समझ रहे हो। यहां भी तुमसे तरीका पूछा, प्रोविजन वहां भी पूछा था ना, प्रोसीजर क्या है यहां भी। ये क्या है, आपको अगर स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ेंगे तो कुछ सब्जेक्ट के सिलेबस ऐसे हैं जो कि सेम आप पढ़ेंगे, सेम प्री के लिए भी है, सेम मेंस के लिए भी है, ठीक। तो इसका जो सही जवाब है वो है 1, 2, 3, यानी कि एडिशन भी कर सकता है, वेरिएशन भी हो सकता है, रिपील भी हो सकता है, ठीक है। सेम अगर आप देखिए मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहाँ पे 71st अमेंडमेंट एक्ट से 1992 का, ठीक है। लैंग्वेज के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। फिर पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट वॉज वाइडली बिलीव टू बी इनैक्टेड टू ओवरकम जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट, कौन सा ऐसा एक्ट था जो कि जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट को बताया गया था। तो हमारा पहला अमेंडमेंट ही था, ठीक है, रिजर्वेशन के ऊपर और लैंड रेवेन्यू के ऊपर, लैंड सेटलमेंट के ऊपर ये था, ठीक है, लैंड सीलिंग के ऊपर। तो आप देखिए कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं अमेंडमेंट से, 44 अमेंडमेंट एक्ट से पूछा गया है, ठीक है। अब यहां खत्म होता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है बिल्स के ऊपर, समझ में आ रहा है। तो कैसे ये है एग्जाम ओरिएंटेड, डू यू नो दैट। ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लगता है शायद आपको नहीं पता है, लेकिन डोंट वरी, वी विल लर्न, ये प्रोसेस है हमारा, और यही एग्जाम ओरिएंटेड है, और यही है बिल्कुल कि आप लिमिटेड पढ़िए, समझ में आ रहा है, ठीक। अब देखिए ये हमारा एम बुक, सो वी हैव लॉन्च्ड एम बुक। इज अ माइक्रो थीम बुक, so we have micro themes series of pre and mains
वी हैव माइक्रो थीम सीरीज ऑफ स्टेट पीसीएस एज वेल, ठीक है, प्री मेंस का। तो अगर आप इनको देखोगे तो आपको क्लैरिटी होगी कितना लिमिटेड मेरे को पढ़ना है। ओके, तो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे हमारे ये सारे सब्जेक्ट हैं प्री के, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड ऑल। तो अगर हम यहां पर आते हैं, लेट्स से कि पॉलिटी, ठीक है, तो पॉलिटी के प्री में हमारे पास 76 थीम है, 76 थीम। ओके, इसी 76 थीम को हमें मास्टर करना है। और अगर आपने नहीं भी कर पाया, चलो, और 80% भी थीम को अगर आपने मास्टर कर लिया है, देन यू आर गुड टू गो, बट इट इज नॉट ईजी टू मास्टर। आपको डेली एफर्ट्स मारने होंगे, ठीक है। अब मैं चलता हूं एक बार, मैं देखता हूं कि मैं पॉलिटी में एक बार चलता हूं, ठीक है। ये है पॉलिटी हमारा, ये देखिए फंडामेंटल राइट, ठीक है। फंडामेंटल राइट में ये हमारा माइक्रो थीम की पीडीएफ है, ये भी आपको मिल जाएगा, ये भी कोर्स में इंक्लूड है, अलग से बाई करना चाहेंगे अलग से भी मिल जाएगा। ये फंडामेंटल राइट 2024 में, 23 में, 22 में, 21 में, 20 में, 19 में, 18 में, 17 में, यानी कि 2010 से लेकर 2024 तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं फंडामेंटल राइट से। ऑलराइट, किस तरीके के, एक ही टॉपिक से हर साल क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि इस थीम पर आ रहे हैं, ये माइक्रो थीम है, आपको इस तरीके से पढ़ना है। रिट्स एंड देयर फंक्शन, देन स्कोप एंड एफिकेसी ऑफ रिट ज्यूरिसडिक्शन अंडर आर्टिकल 32(2)(6). समझ में आ रहा है? आपको यही सब पढ़ना है, अंड संड कुछ नहीं पढ़ना है। ओके, एक और एग्जांपल बताता हूं। ये जैसे आप देख रहे हो, ये हमारी माइक्रो थीम से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहां से पूछे गए हैं। आपको फंडामेंटल राइट दिख रहा है 20 टाइम्स। उसके बाद ये देखिए यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर 34 टाइम्स यूपीएससी हैज आस्क्ड इन द लास्ट 16 ईयर्स। ओके, तो अगर आपकी प्रिपरेशन इस तरीके से होगी तो फिर सिलेक्शन जरूर होगा हमारा इस एग्जामिनेशन में। आई बात समझ में? साइमल्टेनियसली ये हमारा है माइक्रो थीम लेवल 4, ठीक, पॉलिटी का, जहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे अभी, ये सारी की सारी चीज़ें है ना, फंडामेंटल राइट, ये सारी। तो आपका प्रिपरेशन का ओरिएंटेशन यही होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं अपनी पीपीटी पे, ठीक है। रही बात हमारे पूरे पेपर की, तो लगभग इतने सारे पेपर होते हैं। जीएस पेपर 1 में ये सारे पेपर हैं, सब्जेक्ट हैं, इंडियन सोसाइटी, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। ये हिस्ट्री में भी 5 तरीके की हिस्ट्री है। देन जीएस पेपर 2 में पॉलिटी है, इंटरनेशनल रिलेशन है, सोशल जस्टिस है, गवर्नेंस है। 3 में इतने सारे सब्जेक्ट हैं हमारे, ठीक है। इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक, ये डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी और एनवायरनमेंट। फिर एथिक्स में हमारे एक ही पेपर है, ठीक है, ये एक पेपर। आप सोच के देखिए कि ये सारे सब्जेक्ट हैं, ये भी 250 मार्क्स का, 250 मार्क्स का, 250 मार्क्स का, और ये 250 मार्क्स का। तो दिमाग अगर हम लगाएं, तो अगर हम इसको अच्छे से प्रिपेयर करते हैं इन कंपैरिजन टू, इसमें इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक। तो ये 250 मार्क्स का अलोन है, जिसमें कि ऑलरेडी 6-7 सब्जेक्ट हैं, वो भी 250 मार्क्स का है। एक सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, और ये एथिक्स पेपर 250 मार्क्स का है। अगर हम इस पे देखें तो GS1 250 मार्क्स का, यहां पर हमने बाइफर्केशन किया हुआ है कि कौन सा पेपर किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हम कंपटीशन में हैं तो हमें बहुत स्मार्ट प्ले करना होता है, ठीक है। हिस्ट्री पूरी इतनी बड़ी आप पढ़ेंगे तो 75 मार्क्स का आएगा, लेकिन अगर आप एथिक्स अच्छे से पढ़ लेंगे तो वो 250 मार्क्स का है, आप एज ले लेंगे इस पूरे एग्जामिनेशन में। मैं ये नहीं कह रहा हिस्ट्री को हमें स्किप कर दिए, नो, बट गिव प्रायोरिटी टू दिस थिंग। उसके बाद एस्से, वो भी 250 मार्क्स का है, तो हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। वो मैं आपको कोर्स में बताऊंगा कैसे करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। ऑलरेडी हमने मेंस की माइक्रो थीम रिलीज की हुई है, आपके ऑलरेडी दिया हुआ है, पीडीएफ फ्री में दिया हुआ है, आप जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। 100 वेज यूपीएससी आस्क हमारे मोबाइल ऐप पे है, ठीक है, जहां पर हमने डिटेल में सेग्रीगेशन किया हुआ है, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं इन मेंस। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिया है, ईयर, यहाँ थीम दी हुई है अलग अलग। ओके, दिस इज एविडेंस बेस्ड अप्रोच, बेस्ड ऑन द एविडेंसेस हम लोग अप्रोच अपनी सेट करते हैं। ये है वो PYQ अस्त्रा, पेपर 1 से 4, ये है PYQ फर्स्ट बुक्स लेटर। आप इसको आज ही जाके बाई कर लीजिए, या फिर अगर आप कोर्स में एनरोल करेंगे तो ये आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले जाके इस सिलेबस को आप प्रिंट कर लीजिए, हमारा मोबाइल ऐप इंस्टॉल कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे मोबाइल ऐप दिया हुआ है, उसको जाके आज ही अभी इंस्टॉल कीजिए और फ्री में सिलेबस को हिंदी या इंग्लिश प्रिंट करा लीजिए, ठीक है, यूपीएससी के। क्यों प्रिंट करा लीजिए? क्योंकि मैंने डिटेल में यहाँ दिया हुआ है, बॉक्सेस क्रिएट किए हुए हैं। एंशिएंट हिस्ट्री है, प्री हिस्टोरिक कल्चर इंडिया, सारे बॉक्सेस हैं, वैदिक सोसाइटी, ये सारे बॉक्सेस, मौर्यन पीरियड, सारे बॉक्सेस हैं, क्या क्या पढ़ना है उसमें। एंड देन पार्टीशन ऑफ इंडिया फॉर एग्जाम्पल, ये देन ट्रेंड्स ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल, ये स्ट्रगल फॉर स्वराज। ओके,
ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आप पूरी 80-85 पेजेस का है सिलेबस, उसको जाके आप अभी डाउनलोड कर लीजिए और प्रिंट कर लीजिए। जब आप हमारा मोबाइल ऐप को ओपन करेंगे इंस्टॉल करने के बाद, तो आप देखेंगे लर्न सेक्शन में यहाँ जाएंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे, ठीक है, यूपीएससी सीएससी सिलेबस माइक्रो थीम 2026-2027 हिंदी इंग्लिश। ओके, ये है 100 वेज यूपीएससी आस्क। और उसके बाद आपको कुछ डेली फ्री एमसीक्यूज भी मिलेंगे, तो आप जाइए पॉलिटी, इकोनॉमी, आईआर, ये डेली फ्री एमसीक्यूज सॉल्व कीजिए और आपका एक्टिव रिकॉल भी अच्छा रहेगा। ओके, और अगर फिर आपको कोर्स के लिए एनरोल करना है तो यहाँ पर आप जाएंगे स्टोर में, आपके पास एक सेक्शन आएगा, iOS में नहीं आता है, iOS में वेबसाइट का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया है, वहाँ से बाई करना है। लेकिन अगर आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर एक स्टोर का ऑप्शन आएगा, स्टोर पे आप क्लिक करेंगे तो आप पहुँच जाएंगे। ठीक, ये हमारे सब्जेक्ट हैं जो कि प्री और मेंस में कॉमन है। हम सबसे पहले इन सब्जेक्ट्स को लेकर चलेंगे, ये हमारी प्रायोरिटी होंगे। उसके बाद फिर हम मेंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे। ठीक है, जो प्री और मेंस दोनों में कॉमन आते हैं वो सारे आपके सामने लिखे हुए हैं, जैसे इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, सिक्योरिटी भी आता है, डिफेंस भी आता है, डिजास्टर भी है, गवर्नेंस भी है, पॉलिटी भी है, एंड ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सारे कॉमन है। मेंस में तो आपका ये है ऑप्शनल, एसे, एथिक्स, सोसाइटी, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, और सिर्फ प्रीलिम्स में सीसैट अलग से। ठीक है, अब मैंने आपके लिए 4 क्वाड्रेंट्स बनाए हुए हैं, 4 क्वाड्रेंट्स में विच यू विल बी इजीली अंडरस्टैंड कि मुझे क्या रखना है, क्या एलिमिनेट करना है। पॉइंट नंबर 1, you have to study what actually matters. Don't waste your time in random things. Okay? Study only what matters. For example, ये 4 क्वाड्रेंट आपको दिख रहे हैं, इसमें से ये इंपॉर्टेंट का है, ये नॉट इंपॉर्टेंट है, ये अर्जेंट है, ये नॉट अर्जेंट है। ओके, जो इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट है, उसको सबसे पहले कीजिए, प्रायोरिटाइज फर्स्ट, डू इट। जो इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है, उसको स्केड्यूल करिए। जो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है, उसको तुरंत डिसाइड करिए, फटाफट एक्शन लीजिए उसके ऊपर। और जो ना ही इंपॉर्टेंट है और ना ही अर्जेंट है, उसको आप कट कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपके लिए थोड़ा सा बना दिया है, आप अपना भी क्वाड्रेंट फिल कर सकते हैं अपने हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, इस पूरे अभी स्टेटस में आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है, अर्जेंट भी है, वो ये है यूपीएससी का सिलेबस। ठीक है, आपको स्टैटिक पोर्शन को फटाफट बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी है ताकि आप एनसीईआरटी एनसीईआरटी की रीडिंग फटाफट ले लें। जो इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट नहीं है, जैसे कि हमारा ऑप्शनल इंपॉर्टेंट है लेकिन एकदम इमीडिएटली नहीं स्टार्ट करना है, इंपॉर्टेंट है सीसेट इमीडिएटली नहीं स्टार्ट करना है, इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग करंट अफेयर इमीडिएटली नहीं करना है। बेसिक पहले ये है, इसको खत्म करिए। ठीक है, और पीवाईक्यू को थोड़ा एक बार देख लीजिए। नाउ, जो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है, जैसे कुछ कुछ यूट्यूब की वीडियो स्ट्रैटेजीज होती हैं। ठीक है, आप लोग क्या करते हो, आपको लगता है कि ये अर्जेंट है कि एडिटोरियल को पढ़ना है एकदम, लेकिन इतना अर्जेंट नहीं होता है। ठीक है, आई मीन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, यस आपको अर्जेंसी फील होती है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। न्यूज़ एंड नोट्स विदाउट पीवाईक्यू, आप सारे हर न्यूज़ को फॉलो करते हो करंट अफेयर के लिए, लेकिन बिना पीवाईक्यू के लिंकेज आप देखते हो, वो गलत है। ठीक, एंड देन उसके बाद आता है हमारा जो इंपॉर्टेंट नहीं है, अर्जेंट भी नहीं है, जैसे कि शॉर्टकट्स आप यूज़ करते हो, आप टॉपर्स कॉपी को उठा के देखने लगते हो। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें जो कि हम लोग क्वाड्रेंट में डिस्कस कर चुके हैं। ऑलराइट, नाउ ये मेथड आप स्क्रीनशॉट ले लो, इस मेथड को ही आप यूज़ करोगे, प्रायोरिटी दोगे एविडेंस बेस्ड अप्रोच। नंबर 1 योर एविडेंस इज सिलेबस, नंबर 2 योर पीवाईक्यू, नंबर 3 योर मॉक टेस्ट। दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, और कभी कभी जो स्टडी मटेरियल होते हैं उनको इवोल्यूशन हम करते हैं, यानी कि कोई नया टॉपिक जो हो गया या उस नए बुक में आ रहा है। ठीक है, तो पीवाईक्यूज जो हैं उनसे रिलेटेड जो थीम्स हैं, उनसे रिलेटेड जो न्यूज़ हैं, वो ज़रूर आप करिएगा। ठीक है, व्हाट वर्क्स फॉर देम, वर्क फॉर देम आपके लिए। ठीक है, नाउ लास्ट, अब आते हैं हम लोग इसकी रियलिटी पे। यूपीएससी सीएससी एग्जाम इज द प्रोसेस इज फेयर, एग्जाम इज फेयर, बट the eligibility criteria is not fair. From age 21 to age 37, almost everybody can give this examination. Okay? तो अगर यूपीएससी का एग्ज़ाम, अगर हम रिजल्ट की बात करें तो आप ये देखिए कि इस साल जो रिजल्ट आया है 2024 का, ठीक है, जिसमें कि ऑल इंडिया रैंक आईएएस शक्ति दुबे आईएएस बनी ऑल इंडिया रैंक 1, उस वाले बैच में 25 में से
13 टॉपर्स ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके थे 2020 से 2023 के बैचेस में, मतलब एग्जाम में ऑलरेडी सेलेक्टेड थे। 25 में से 13 ऐसे थे, ठीक है। फिर उसके बाद पूरे के पूरे एग्जाम में जो 2024 का जो पूरा रिजल्ट आया था, उसमें से जितने लोग सेलेक्ट हुए थे, आउट ऑफ दैट 166 कैंडिडेट्स जो हैं वो रिपीटर्स थे, यानी कि इससे पहले सेलेक्ट हो चुके हैं, ठीक। स्मॉलर नंबर रिटर्न फ्रॉम 2022 के 116 कैंडिडेट और 2021 के 35 कैंडिडेट और 2020 के 24 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया था, जिन्होंने एग्जाम क्रैक किया। ये लोग ऑलरेडी सिलेक्टेड थे, ठीक है। यानी कि टॉप 100 रैंक में 34 कैंडिडेट ऑलरेडी सर्विसेज में सिलेक्टेड थे, रिपीटर्स थे जो कि एग्जाम दिए हैं, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि रीअटेम्प्ट आर कॉमन फॉर आईएएस एंड आईएफएस, ठीक है, या फिर ड्रीम होम कैडर लेने के लिए। न्यू कमर्स कॉम्पीट विथ सीजन्ड ऑफिसर, सो स्ट्रैटेजी प्लस प्रैक्टिस मैटर्स। समझ रहे हो आप कि आप किन लोगों से पंगा ले रहे हो? ऑलरेडी ये सिलेक्टेड है, ये तो ठीक है। कई सारे ऐसे लोग होंगे जो कि 2027 में सेलेक्ट होंगे और 2027 में जो एग्जामिनेशन देंगे आपके साथ, वो लोग ऑलरेडी कहीं ना कहीं मेंस या इंटरव्यू में डिस्क्वालीफाई हो गए थे, वो लोग भी आके आपका एग्जाम देंगे। किसी किसी की फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, किसी किसी का क्वालिफिकेशन बहुत अच्छा है, ऑलराइट। सो ये लोग भी आपके एग्जाम देंगे। जो 2026 में मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, लगभग 8,000 से 10,000 लोग, वो आके 2027 में भी देंगे। जो 2026 में इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, उसमें से लगभग 1,800-1,500 लोग आके आपके 2027 में एग्जाम देंगे। आई बात समझ में? नाउ अब फेज 1 में मैंने बताया था जनवरी से हम लोग पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, फेब में इकोनॉमी। पॉलिटी जैसे आप स्टार्ट करेंगे, आप अपने ऑप्शनल को उठा लीजिएगा। ऑप्शनल नंबर 1, पेपर 1 पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, अच्छा टाइम दीजिएगा अपना, ठीक है। वीकेंड पे कोशिश करिए अपने ऑप्शनल को पढ़ने की, ठीक। और वीकेंड पे ही हम लोग करंट अफेयर भी स्टार्ट करेंगे। करंट अफेयर में आप डेली एडिटोरियल एनालिसिस किसी की वीडियोस फॉलो कर सकते हैं, या फिर जब आप मेरे प्रोग्राम में आएंगे तो हम लोग करंट अफेयर वीकली करेंगे, ओके। जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसी का आप न्यूज एनालिसिस और प्रैक्टिस एमसीक्यूज करते रहिएगा। देन इकोनॉमी फेब में स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी आपका बजट और इकोनॉमिक सर्वे आएगा, तो आपको इकोनॉमी पढ़ने में थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, ठीक है। क्लैरिटी आती रहेगी धीरे धीरे। तो हम लोग इकोनॉमी यहाँ पढ़ेंगे, समझेंगे, ओके। देन मार्च में ज्योग्राफी, अप्रैल में हिस्ट्री। अगर आप देखोगे तो पहले हमने इन स्टैटिक सब्जेक्ट्स को कवर किया है। ये पूरे के पूरे स्टैटिक सब्जेक्ट्स को पहले कवर कर लिया, क्योंकि ये आपकी फाउंडेशन है। मैंने लिखा था ना, फाउंडेशन। देन उसके बाद मई और जून में, मई में एनवायरनमेंट, जून में साइंस एंड टेक हम लेकर आएंगे, ओके। आपके पास बहुत अच्छा टाइम है कि आप एक एक सब्जेक्ट को टाइम दें। अगर आप फेब में आ चुके हैं तो आप इकोनॉमी के साथ साथ पॉलिटी को रिवाइज करते रहेंगे। जिस फ्रेश मंथ में आप आ रहे हैं, आप उसके प्रीवियस मंथ में जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे थे, आप उसको रिवाइज कीजिएगा, ओके। इस तरीके से आप बैलेंस्ड अप्रोच लेकर चलेंगे कि एक सब्जेक्ट जो है हमारा फ्रेश है और एक सब्जेक्ट हम रिवाइज कर रहे हैं। क्लियर है? नाउ फॉर एग्जांपल, जो हमारी पीवाईक्यू की माइक्रो थीम है, टारगेटेड अप्रोच कैसे अपनानी है हाई प्रायोरिटी में। जैसे पॉलिटी आपको पढ़ना है, ऑलराइट, जनवरी में, तो पॉलिटी में आप देखोगे सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आए हैं वो आए हैं यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर से। उसके बाद जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो है फंडामेंटल राइट। देन उसके बाद क्वेश्चन बन रहे हैं फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग, ठीक। फिर उसके बाद बन रहे हैं पार्लियामेंट से। सो ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जहां पे 80% क्वेश्चंस इन 4 टॉपिक से, या फिर 70% क्वेश्चन इन 4 टॉपिक से पूछा जा रहा है, ठीक। तो आप देख लीजिए, जो भी टॉपिक 15 क्वेश्चन से ऊपर हैं वो आपके हाई प्रायोरिटी हैं। 15 क्वेश्चंस यानी कि ये हाई प्रायोरिटी हैं। पहले उनसे आप शुरू करिए, बेसिक से, बेसिक स्टार्ट करिए, ठीक है। क्लैरिटी आएगी, समझ में आएगा क्या कैसे क्वेश्चंस आए थे। आप जाके माइक्रो थीम में देखिए कैसे क्वेश्चंस आए थे, क्या पूछ रहे हैं, फिर उस हिसाब से आप पढ़ना शुरू करिए। समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक है, रैंडम पढ़ाई नहीं पढ़नी है, ठीक। जैसे ये इकोनॉमी का हो गया, मैंने तो बताया था अगले महीने आपकी इकोनॉमी है। इकोनॉमी में देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया ट्रेड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट, क्या होता है ये, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कितने क्वेश्चंस आए हैं, ठीक। उससे भी ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है रोल ऑफ आरबीआई एंड बैंकिंग, 56 टाइम्स इन लास्ट 16 ईयर्स। ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एवरी ईयर। वी हैव टू फोकस हियर, ध्यान देना है हमें यहाँ पे, दिस इज नॉन नेगोशिएबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो टारगेट हमें करना है कैसे हम इसको समझें, क्योंकि जब आप प्रीलिम्स देंगे
2027 में, तब यहाँ से लगभग फिर से 4 क्वेश्चन आएंगे और फिर आप मिस्टेक कर कर आएंगे। तो हाई प्रायोरिटी एरिया के साथ आप बिगिन कर सकते हैं ताकि एटलीस्ट आपका अप्रोच एग्जाम ओरिएंटेड हो। ठीक है, ये हमारे प्रीलिम्स माइक्रो थीम्स है, ये आप बाई भी कर सकते हैं जाके इजीली। फेज 2 में 184 डेज, यहाँ से मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर जुलाई में एथिक्स और गवर्नेंस हम पढ़ेंगे, जो कि नॉन नेगोशिएबल बताया था ना, एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगस्त में हम पॉलिटी की रिवीजन करेंगे जो हमने जनवरी में स्टार्ट की थी, और फिर आईआर और सिक्योरिटी पढ़ेंगे। फिर वैसे ही ज्योग्राफी की रिवीजन करेंगे सितंबर में, डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ेंगे। अक्टूबर में सोसाइटी और जस्टिस, नवंबर में हिस्ट्री का रिवीजन, पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री, दिसंबर में इकोनॉमी एग्रीकल्चर। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्लियर है। बाकी सारी चीज़ें यहाँ से आप ऑप्शनल 2 उठा सकते हैं, पेपर 2, और फिर करंट अफेयर, न्यूज़ एनालिसिस, फिर मैंने आंसर राइटिंग भी यहाँ इंक्लूड कर दी है। ठीक है, उसके बाद जब हमारा फेज 3 आएगा, जो हमारा जनवरी 2027 से 2000 मई तक आएगा। ठीक, ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड है। यहाँ पर आप सीसैट लगा दोगे, ऑप्शनल को रिप्लेस करके सीसैट। 5 महीने इज गुड टाइम फॉर सीसैट। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे करंट अफेयर की कंपाइलेशन करनी होगी, देन प्रैक्टिस एमसीक्यू प्रैक्टिस आप यहाँ तक करेंगे, फिर न्यूज़ एनालिसिस भी आप मार्च तक करेंगे, उसके बाद बंद, फिर रिवीजन स्लॉट 1, रिवीजन स्लॉट 2। ओके, ये प्री ओरिएंटेड है। ठीक, तो जो हमारी माइक्रो थीम है उसमें डिटेल में दिया हुआ है किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या टारगेटेड है, और आप जाके आज ही उसको डाउनलोड कर लीजिए, परचेज कर सकते हैं। ये ऑलरेडी दिया हुआ है आपके कोर्स में है। अगर आप MAGP 2027 में एनरोल कर रहे हैं तो ऑलरेडी ये सब है आपके में। अगर आप अलग से बाय करना चाहते हैं तो आप, ये माइक्रो थीम है, 499 मतलब डिस्काउंटेड फीस है। आप कोड यूज कर सकते हैं मार्ग प्री MARGPRE, ये कोड यूज कर सकते हैं टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट, MARGPRE। ठीक है, और हिंदी माध्यम के अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आपको यूज करना है तो आप लिख सकते हैं UPSC प्री। ठीक है, UPSC प्री तो हिंदी माध्यम में आपको मिल जाएगा। आई होप कि इतनी क्लैरिटी आपको आई होगी, राइट। जैसे प्री में हमारे पास कुछ सैंपल्स मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चंस कुछ दिए हुए हैं, हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स कहां से लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये तो गई, एक एग्जांपल दिखा रहा हूं हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स में। जैसे ये फाइनेंस कमीशन है, फाइनेंस कमीशन हर साल लगभग पूछ देता है, जैसे कि मैंने प्रेडिक्ट भी किया था। जैसे 2012 में 13th फाइनेंस कमीशन से क्वेश्चन आया था प्री में, 2015 में 14th फाइनेंस कमीशन से क्वेश्चन आया था, 2023 में 15th फाइनेंस कमीशन से ऊपर क्वेश्चन आया था। ठीक है, इस साल क्या हुआ, 2025 में 15th फाइनेंस कमीशन के ऊपर ये क्वेश्चन आ गया था। ओके, जबकि मैंने बताया था कि ऐसे क्वेश्चन आएगा, आप पढ़ लीजिएगा कि फाइनेंस कमीशन का रोल क्या होता है, उनकी पावर क्या होती है, स्टेट के लिए वो कैसे टैक्सेस को डिवोल्यूट करते हैं, ठीक है, उनका शेयर्स क्या होता है। ठीक, ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे और ये क्वेश्चन आ भी गया था, और ये हाई प्रायोरिटी थीम है, आते हैं इससे। फॉर एग्जांपल 2010 में भी आया, 2011 में भी आया, फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड। आप वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर नॉन नेगोशिएबल, आपको मतलब डोंट टेक इट लाइटली। ठीक है, ये इजी मार्क्स हैं, आपको मिल सकते हैं। सेम थीम मेंस में भी आई है 2013, 18, 21 में, 14 फाइनेंस कमीशन, 13 फाइनेंस कमीशन। ओके, समझ में आ रहा है आपको। ऐसे एग्जाम अप्रोच अगर आप लेकर चलते हैं तो आपका प्री जरूर निकलेगा, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, दिस इज द आइडियल टाइम विच यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर UPSC CSE एंड द बैचेस स्टार्ट नाउ। नीचे कमेंट सेक्शन में आपको गूगल फॉर्म है, इफ़ यू रियली नीड 1-to-1 मेंटोरशिप, और आपको चाहिए कि नहीं हमारी टीम आपको कॉल करे, प्लीज़ आप गूगल फॉर्म फिल कीजिए, देन आवर टीम विल गेट इन टच विथ यू फॉर 1-to-1 मेंटोरशिप। इफ़ यू अंडरस्टूड कि सब कुछ ठीक है सर, मैं एनरोल कर लेती हूँ, आ जाइए। ठीक है, नाउ अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है, देन आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू एंड थैंक यू फॉर दैट। ओके, यू डिजर्व UPSC CSE 2027 मेंस को आप लिखना चाहिए। यू डिजर्व टू बिकम एन सिविल सर्वेंट बिकॉज you not only have watched this video, because now you have understood what requires, actually में क्या required है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। और अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो ये कमेंट कीजिए, नो मोर रैंडम प्रिपरेशन। अगर आप ये कमेंट करते हैं तो मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगा हार्ट बना के, और मैं आपके मैसेजेस भी देखूँगा। एंड आई फील वेरी प्राउड जब ऐसे बच्चे पूरी वीडियो देखते हैं और क्लैरिटी मिलती है उनको।
सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। कोई भी डाउट होगा कमेंट में बता दीजिएगा, या फिर टिकर में हमारा नंबर चल रहा है, उस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।